Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Wednesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I am Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, सोनू सूद। धन्यवाद निशित। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़ी ताजा खबरें आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं निशित कुमार। Domestic stocks witness losses of more than 0.5%. Sensex closes near the 60,000 mark. Nifty finishes below the 17,900 level. And Asian equity indices decline amid worries about COVID-19 and higher share valuations. घरेलू शेयर बाजार 0.5% से अधिक की गिरावट में रहे। सेंसेक्स 60,000 के करीब बंद हुआ। निफ्टी 17,900 के स्तर से नीचे आ गया। और कोविड-19 और उच्च शेयर मूल्यांकन पर चिंताओं के बीच एशियाई शेयर बाजार गिरावट में रहे। कार्यक्रम में हम स्वागत करना चाहेंगे वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ जयंतो दास का, जो आज के खबरों पर हमसे चर्चा करेंगे। जयंतो जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। वेलकम जयंतो। थैंक यू। और अब शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। सेंसेक्स और निफ्टी आज 0.5% से अधिक की गिरावट में रहे। अन्य एशियाई बाजारों से मिले नकारात्मक संकेतों के बीच दोनों प्रमुख सूचकांक मंदी में आ गए। सेंसेक्स 60,000 के करीब बंद हुआ और निफ्टी 17,900 के स्तर से नीचे आ गया। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.52% की मंदी से 314 अंक कम होकर 60,008 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.56% के नुकसान से 101 अंक टूटकर 17,899 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजारों की बात करें तो यहां तेजी का रुख था। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.21% की बढ़त में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.05% की वृद्धि दर्ज हुई। The Sensex and the Nifty today fell more than 0.5%. Both equity indices ended down amid negative cues from other Asian stocks. The Sensex closed near 60,000 and the Nifty ended below 17,900 level. The BSE Sensex declined 314 points or 0.52% to finish at 60,008. The NSE Nifty also tumbled 101 points or 0.56% to end at 17,899. And in the broader market at the BSE, the mid-cap index gained 0.21% and the small-cap index added 0.05%. And in the Sensex pack, shares of 11 companies gained while 19 logged losses. Maruti was the top gainer as it surged 2.8%, followed by Asian Paints, which gained 2.5%, and Power Grid climbed 2.1%. NTPC and ITC both gained 1.7%. While on the other side, the Axis Bank plunged 2% and Reliance fell 1.9%. Kotak Bank declined 1.5% and Bharati Airtel slipped 1%. And in the sectoral indices, 14 out of the 19 sectors logged losses. Power and auto sector stocks gained the most, adding 0.6%. Utility sector stocks gained 0.5%, and on the side, realty and energy sectors plunged 1.8%, and oil and gas sector stock declined 1.4%. Telecom fell 1%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,452 companies gained while 1,885 fell. Shares of 127 companies remained unchanged. Well, Jayanto, what do you make of the market hanging in the red over the past few sessions? Well, typically, if you take a cue from what I discussed last week, and I guess not only in India, globally, that's become a growing concern now, and that is the inflation, And specifically with high prices, I guess U.S. is facing inflation at the highest levels in the last 30 years. And I guess in India also a situation is developing in terms of prices skyrocketing, and despite the fall in domestic oil prices, I still believe the inflationary spiral is on.
So somewhere down the line, I guess investors have to take a call in terms of balancing of how the present scenario is in terms of existing stock levels. The good news today has been that it has kept on holding 60,000. So psychologically, I guess, as we normally say, that it's something good to hold on to. So I guess the 60K levels has been held on. But I don't think it's a really long bull run to look forward from here, unless some macro parameters are revisited and typically, government takes some policy measures in reining down this inflation. तो चंतु, अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो वैल्यूएशंस एक कंसर्न आरबीआई ने जताया है कि भारतीय बाजार बहुत हाईली प्राइस्ड है, वैल्यूएशंस बहुत हाई है, और अब इंटरनेशनल लेवल पर भी हम देख रहे हैं कि हाई वैल्यूएशंस को एक कंसर्न की तरह माना जा रहा है. तो ऐसे सिनेरियो में आपको लगता है कि शायद करेक्शन हेल्दी भी है बाजार के लिए? सोनू, अगर वैल्यूएशंस का बात किया जाए तो अच्छे वैल्यूएशंस हमेशा मार्केट सेलिब्रेट करते हैं, और खास करके अच्छे वैल्यूएशन जिसका बुनियादी ढांचा बहुत अच्छे हो. तो मैं मानता हूं कि हाँ, ये जरूर है कि स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में कुछ क्षेत्रों में स्ट्रेच आउट ज्यादा हुआ है मार्केट. हालांकि लार्ज कैप्स का भी काफी सारे एनालिस्ट मांगेंगे कि शायद के लार्ज कैप्स में भी कोई स्टॉक्स में स्ट्रेच आउट हुआ है. लेकिन ओवरऑल जो आरबीआई का जो एक अलग से टिप्पणी था वैल्यूएशन के ऊपर, उसमें ओवरऑल खास करके इस मार्केट में जहां पे 60,000 ऊपर मार्केट लगातार जारी है, तो इस वैल्यूएशन का टिप्पणी भी वेलकम है. एंड देन दैट्स हाउ मार्केट्स होता है सर इन द डे. Well, Jayant, even as you talk of the 60,000 level, yet you raise a red flag kind of there. So do you feel that the retail investors are kind of getting overly cautious and jittery over the overvalued markets, and also the fear of inflation, as you say, getting to them? Well, being cautious is something I think is a good sign. Jittery is not something what you should be when you're in the stock market. And typically, at these levels, as I've always said, the market levels are pretty high at this point of time, so investments would be in choppy waters. And specifically in a scenario where globally there's so much of churn happening across sectors, and the macro parameters, as I said, reiterating, like price and all, taking a major role from where the markets will go hence. So I guess markets searching for the brave and the bold to remain. And if you feel jittery, it doesn't help. What's required is always a cautious optimism in where the markets are headed, and also a cautious, decision making on where your portfolio is headed. So you can't always be in a zone where you're making money. Neither will you be in a zone where you'll always be losing money. That's right. So typically, you should have a goal set up in what you expect from the market over the next 2 years, 3 years, on an average of your holding. Now, if someone is entering at 60,000 levels any stock, and they believe that we should wait till 65,000 or even 70,000 levels to happen in the next 2-3 months, which we typically saw, from March 2020, that was last year, till now, the way the, stock markets rose from 26,000 levels to almost more than doubling. So those things don't happen, I mean, they rarely do. Over-optimistic, yeah. Yeah, so I guess if you're feeling jittery, I think you should not be investing in stock markets. You should take care of your, your good health and focus on, much more mundane investment options. All right. जयंतु जी, अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो ऑटो सेक्टर कल भी एक अच्छा परफॉर्मर था, आज भी अच्छा परफॉर्मर है. इनफैक्ट जो हाईएस्ट रिटर्न्स आए हैं जिस कंपनी में, हालांकि हम नाम नहीं लेते हैं क्योंकि, बट ऑटो सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है मारुति, कल भी टॉप स्टॉक था, आज भी टॉप स्टॉक है. सो आपको लगता है कि ऑटो सेक्टर में जो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, शायद वो कहीं अब सेटल डाउन हो रही है एंड आउटलुक ब्राइट दिखाई दे रही है आपको? देखिए सोनू, ऑटो क्षेत्र में खास करके मेरा अपना पर्सनल व्यू ये रहा कि कोविड में सबसे ज्यादा धक्का अगर 3 क्षेत्र में माना जाता है तो उसमें ऑटो क्षेत्र भी उनमें से प्रधान रूप से है जी. तो जहां पे गिरावट इतना ज्यादा होता है, ग्रोथ फैक्टर जो मोमेंटम जो है काफी अच्छा होता है, खास करके इंडिया जैसे देशों में जो लगातार पिछले 1 दशक तक ऑटो सेक्टर कहे या आईटी सेक्टर कहे, बहुत अच्छा भूमिका पालन किए मार्केट्स को ओवरऑल तेजी में ले आने के लिए. और हम सबको पता है कि इंडिया वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट है इन टर्म्स ऑफ ऑटो. तो कोविड का वजह से जो रुकावट आया हुआ था डिमांड में, उसमें बेशक वापसी एक आया हुआ है, और साथ में क्षेत्र विशेष स्टॉक्स में
टॉप 3 या टॉप 4 ऑटो सिस्टम में जिस तरह से एक हलचल मचा हुआ था पिछले 3-4 महीने में, हाँ चौपी थे, इसमें गिरावट भी हुआ है, लेकिन ओवरऑल सेक्टरली इंटरेस्ट वापस आया है, क्योंकि पिछले साल सबने ऑलमोस्ट राइट ऑफ कर दिया था ऑटो सेक्टर एज इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन जब तक मार्केट में सेटल डाउन ना हो। तो वो स्थिति इस वक्त नहीं है। इस वक्त स्थिति ये है कि अगर आप हमें कोई पूछे तो इसमें दो प्रधान रूप से जो रॉ मटेरियल कॉस्ट में वृद्धि हुआ है ऑटो सेक्टर में, खास करके मेटल्स का जो कॉस्ट वृद्धि हुए है उसका सीधे असर ऑटो सेक्टर में आने वाले हैं। और दूसरा जो चिंता का विषय होगा वो ये है कि इन्फ्लेशनरी जो प्राइस राइज हुआ है, और साथ में ऑफकोर्स इन्फ्लेशन का वैसे जो ब्याज दर का वृद्धि होने का जो उम्मीद है। और इस वक्त हम सबको पता है कि ऑटो लोन्स कहे, होम लोन्स कहे, दे आर वन ऑफ द लोएस्ट लेवल्स। तो कोई अगर इंतजार कर रहे थे और कोविड का वजह से अपना डिसीजन मेकिंग पोस्टपोन किया है गाड़ी खरीदने या 2 पहिया वाहन खरीदने के लिए, तो मैं मानता हूँ ये सटीक समय है जाके अपना निर्णय ले अपना खरीदारी का। और इसका रूप हम सीधे तरह से ऑटो सेक्टर में भी देख पाएंगे आने वाले 3-4-6 महीने के अंदर। ये कहते हैं कैवियर के साथ मैं कहूंगा, एक डिस्क्लेमर बेशक मैं डालूंगा उसमें कि इंटरेस्ट रेट कैन बी पार्टी स्पॉइलर जी। तो अगर ब्याज दर में अचानक बहुत तेजी से वृद्धि आता है तो फिर से जाके ऑटो सेक्टर में एक असर शायद हो। एंड ऑफकोर्स इन्फ्लेशनरी प्राइसेस, क्योंकि रॉ मटेरियल इनपुट प्राइसेस में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है खास करके मेटल क्षेत्र में। तो वो सारी चीजें अगर मोर और लेस अगर कंट्रोल रहता है, हालांकि कंट्रोल फ्री मार्केट में कुछ नहीं होता है, कंट्रोल यानी कि प्राइस में अगर कहीं न कहीं से जो ट्रेजेक्टरी है उस ट्रेजेक्टरी में कहीं कमी हो और एक अपस्टार्ट जंप ना हो कि एक नॉर्मल प्राइस राइज हो, तो ऑटो सेक्टर में जो वृद्धि इस वक्त हम देख रहे हैं, जो रुचि हम देख रहे हैं निवेशकों का, ये बरकरार रहेंगे। साथ में ऑटो सेक्टर के बारे में एक छोटा सा टिप्पणी कहूंगा जहां पे आप अपना शायद अगला न्यूज पढ़ना चाह रहे हैं, उसमें ये है कि इलेक्ट्रिक वाहनों का जो डिमांड और जो अलग से ग्लोबल हब करने का सरकार का जो नीति है, तो उसमें भी एक बहुत बड़ा असर ऑटो सेक्टर के ऊपर एक चर्न होने वाला है। और वो भी जब भी निवेश करेंगे ऑटो सेक्टर में, ये बेशक याद रखिएगा, हालांकि आज का तारीख में कोई भी ऑटो मैन्युफैक्चरर्स मेरे ख्याल से टाटा छोड़ के और ह्यूंडई छोड़ के इलेक्ट्रिक सेक्टर में उतना बड़ी तरह से अभी तक एक्सपोज नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा गेम टर्निंग सिचुएशन आने वाले 24 महीने के अंदर हो सकता है। तो आपका जो भी आप निवेश करें ये सारी चीजें ध्यान रखते करें। थैंक यू वेरी मच। जैन, तो हम इस चर्चा को जारी रखेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के साथ। श्रोता हमारे साथ बने रहिए। बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पानी यूं मत डाले जाओ, ऋतु देख के फसल उगाओ। सिंपल है छोटे कि अपने लक्ष्य को दिमाग में रख कर इन्वेस्ट करना सीखो, पैसा ऐसे ही मत लगाते जाओ। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, अगर पढ़ाई के लिए या किसी की शादी के लिए जोड़ना है रुपया तो उसी हिसाब से तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना भैया। बड़े भैया छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। इससे पहले कि हम करेंसी की ओर बढ़े, जयंतु एक और चीज है जिस पर हम आपकी टिप्पणी चाहेंगे। आईपीओज एक के बाद एक आ रहे हैं और बड़े सक्सेसफुल भी हो रहे हैं भारतीय बाजार में। एक लेटेस्ट जो खबर आई है कि सेबी कुछ रूल्स को टाइटन करने की तरफ कदम बढ़ा रहा है ताकि मॉनिटर हो पाए कि जो पैसा आ रहा है आईपीओ प्रोसीड्स में वो कैसे यूज हो रहा है। आपको लगता है कि ये एक उचित कदम है, ये देखते हुए कि आईपीओज में बहुत बड़ी तादाद में पैसा आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने आप को मतलब ओवरऑल देश को शाबाशी इसलिए देना चाहिए क्योंकि आईपीओज में जितना भी पिछले 1 साल का दौरान कंपनी सारे आए हुए हैं, कोविड का दौरान खास करके लोगों का मेहनत और फल के साथ साथ मार्केट में निवेशकों ने रुचि दिखाया वो सारे कंपनी में, और ज्यादातर कंपनियों में ऑलमोस्ट मैं मानता हूँ 90% कंपनियों में निवेशकों को फायदा भी रातों रात हुआ है। तो ये तो एक मार्केट डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और मार्केट ग्रोथ का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और सबूत भी है। साथ में सेबी का जो भूमिका है एज ए रेगुलेटर, उनका एज ए रेगुलेटर एक बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि आईपीओ मार्केट में जब रुचि आता है तेजी से, तो ऐसा हमेशा देखा जाता है। हालांकि कोई भी आईपीओ बिना सेबी का परमिशन का लेन के नहीं आ सकते, वहां पे विस्तृत रूप से जब एप्लीकेशन होता है आईपीओ का, ये खास करके मैं जो हम लोग का खुदरा निवेशक है, काफी सारे नए निवेशक भी शायद हमारे श्रोताओं में है, उन लोग को भी शायद बताना चाहूंगा कि बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस होता है आईपीओ एप्लीकेशन का, अप्रूवल्स का, और उस प्रोसेस के दौरान ही आपको जब परमिशन मिलता है आईपीओ ले आने के लिए, तो उसमें अगर रेगुलेटर का ये निर्णय है कि इस वजह से पैसा उठाया जा रहा है
आईपीओ के दौरान कंपनी एक उद्देश्य बताते हैं हमेशा अपने प्रोस्पेक्टस में कि मेरे को अगर 100 रुपया चाहिए निवेशकों से, वो 100 रुपये में कहाँ लगाऊंगा, कैसे स्थिति में लगाना चाहता हूँ, किस क्षेत्र में लगाना चाहता हूँ। तो रेगुलेटर का भी एक कहीं ना कहीं जिम्मेवारी बनता है, इफ नॉट ट्रैकिंग एटलीस्ट समझना कि सही रूप से वो पैसा का उपयोग हो रहा है। क्योंकि नहीं तो मार्केट में रेगुलेटर का प्रधान रूप जो होता है वो ये है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्ट करना, इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट करना, और साथ में मार्केट में इस तरह का ट्रांसपेरेंसी के साथ मार्केट को लगातार चलाते रहना, ताकि लोगों को जब जो भी निवेश करने आता है, चाहे 10 रुपया लगाए या 10 करोड़ रुपया लगाए, उनको लगे कि हाँ इस स्थिति में एटलीस्ट मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो मेरा निजी निर्णय है, इट्स माई सेल्फ डिसीजन, बट एट द सेम टाइम ऐसा कुछ ना हो जहां पे रेगुलेटर के दौरान जो जो चीजें मॉनिटर करना है उस पर कोई छूट ना हो जाए। तो वो स्थिति देखते हुए मैं मानता हूँ इस पर कि सेबी ने जो अपना अलग से बात बताया, हालांकि ओवर रेगुलेटेड मार्केट करना भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, नॉट ओनली आईपीओ इवन सेकेंडरी मार्केट में। तो ये उम्मीद करेंगे कि सेबी का जो निर्णय है उस निर्णय को देखते हुए मॉनिटरिंग और साथ में सेबी का ओवरऑल समझना देखना वो एक ओवरऑल मैक्रो लेवल में जारी रहेंगे। ज्यादा अगर ओवरडू हो जाता है चीजें, जो कभी कभी नॉट ओनली इन इंडिया, दुनिया भर का रेगुलेटर कभी कभी ओवरडू भी कर लेता है जब एग्जीक्यूशन आता है। So fine balancing तो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। Yeah. And talking of continuing this IPO story, there's been considerable noise going on in the primary market, especially with a flurry of IPOs being pushed recently, and many more actually lined up soon. So as much as this gush of IPOs is almost unprecedented in the last decade or so, what's your take on that, and what advice would you have for our listeners, especially with the hype surrounding all? I didn't get your question. Take on what exactly? Take on the hype which is surrounding all the IPOs which is coming in, as in, Well, you see, let me first, let me first re-emphasize. Correct is the wrong word, but let me first re-emphasize the fact. Yeah. Most of the IPOs which have been there over the last, say, 1 year or 12 months or so, I believe almost 70 to 80% companies, brand-wise, are already recognized brands, big brands. They have been in the market for long. They have been, as a product in whichever sector they are, they had a strong consumer interest. Yeah. So, I mean, that's how the rule works, right? I mean, you have to be there for X number of years working and all. True. But the good thing was, if you keep a track and if you make a list of the companies which have been coming in, almost 70 to 80% companies are retail companies with an extremely good brand awareness. So that was almost 70% work done. Now comes in the hype which has been created post listing of these IPOs. Now that is not something under control of anyone. Yeah. So what has happened is, I believe, over here, typically there is a strong investor mindset where they believe you can make 3 times more money and faster money if you come to the IPO route. Yeah. So as a result of which, when these brands came into the market, and given the trust these brands have been carrying even before the IPO days, pre-IPO days, that got reflected in terms of the listing advantages. I mean, one of the most famous women's brand which was listed, will not name it, but yes, a fantastic listing, with almost 100% jump and all. Absolutely. So, and that's, I guess, a translation of the trust of existing consumers and new and existing investors when it gets listed in terms of how it moves and where the buzz moves. But having said so, let me just once again reiterate the fact to all our investors here. IPO is not a vehicle to double, triple your money in 3 days or 7 days and then move out. If you're investing, still follow the traditional formula of investing, whereby you should know the company, you should know the sector, and you should have some basic homework done on the investment sector. So even if you're buying from one particular product through your mobile app and you find it fantastic, at the end of the day, try to read through what the financials are. Yeah, we'll get back. Because this is a very different ballgame. Absolutely. We'll get back to this IPO story more, but time now to slip into a quick commercial break. Please stay tuned. We have lots more coming up on the other side. बड़े भैया, इस दोहे को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो फसाए। सिंपल है छोटे, कि बिना विचार किए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बाद में पछताएंगे और लोग भागेंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, लोगों की बातों में मत पड़िए, इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर आज से ही करिए। बड़े भैया, अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। समझ कर इन्वेस्ट कर।
मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। लेते हैं अगली खबर, करेंसी बाजार की ओर चलते हैं। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 10 पैसे की मजबूती से 74 रुपये 27 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक 0.12% कम होकर 95.77 पर था। आपसे जानना चाहेंगे करेंसी की अगर हम बात करें, हालांकि इसको बिल्कुल भी करेंसी का करार नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जो बिल्कुल आजकल सुर्खियों में है क्रिप्टो करेंसी, उसको लेकर आपका क्या सोचना है? क्योंकि 2 तरह के मत आ रहे हैं। आरबीआई साफ कह रहा है कि रिस्क है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बैन होना चाहिए, लेकिन एक व्यू ये भी है कि उसे रेगुलेट करके उसकी टैक्सेशन होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? देखिए, क्रिप्टो करेंसी ऑब्वियसली इज अ प्रोडक्ट ऑफ द न्यू एज, और हम सबको ये समझना चाहिए कि नए युग के साथ साथ ऐसे काफी सारे प्रोडक्ट आएंगे। आज से 10 साल पहले हम लोग ऐप का समय पता नहीं था बेशक, राइट, और आजकल हम सबको ऐप का कोशिश करते हैं करने के लिए। तो ये जरूर है कि इसका न्यू एज प्रोडक्ट और काफी सारी चीजें इसमें सीखना समझना बहुत जरूरी होता है। लेकिन आज का जो जनरेशन है, इन्वेस्टमेंट जनरेशन, और पिछले हफ्ता इकोनॉमिक टाइम्स में एक न्यूज आया था जहां पे ये कहा रहा था कि यूथ जो है, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग दिन में अपना नौकरी कर रहे हैं, रात भर डे ट्रेडिंग कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में पैसा बनाने के लिए। तो ये सारी चीजें मैं मानता हूँ सही गलत ना देखिए, हमें ये समझना चाहिए कि वक्त के साथ साथ काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में आते रहेंगे, और एज अ रेगुलेटर, एज अ मॉनिटरिंग बॉडी, और इवन एज अ गवर्नमेंट बॉडी, ये सारी चीजें, जैसे शुरुआत में मैंने थोड़ी देर पहले सेबी के बारे में कहा कि आपको एनवायरमेंटली इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करना है जहां पे लोगों को लगे कि हाँ, ये सारी चीजें जो है हमारे लिए इस पर ये रिस्क है इसमें, और ये एक फायदा है, और साथ में सरकार हमारा ये वातावरण यहाँ पे कहीं ना कहीं क्रिएट करके रखा है जिसके द्वारा हम जाके आगे सेलिंग बाइंग क्रिप्टो में कर सकते हैं। मैं नहीं मानता हूँ कि इसमें कोई रोक टोक करना चाहिए, लेकिन रेगुलेशन अगर हो तो ओवर रेगुलेटेड ना हो। इट्स अ वेरी थिन लाइन, कहने में बहुत आसान है ओवर रेगुलेटेड वगैरह ना हो। तो ये सारी चीजें आपको देख के, क्योंकि क्रिप्टो का जो ओवरऑल जो एसेंस है ट्रेडिंग का, वो अगर रेगुलेटेड एटमॉस्फेयर में बेशक वो हो ही नहीं सकता। तो ऐसा स्थिति में जैसे मैंने कहा, नए युग के साथ साथ हमें नया अलग अलग प्रोडक्ट समझने की जरूरत है, और मार्केट रेगुलेटर, गवर्निंग बॉडी जो भी इंटरेस्ट लेता है ये सारी चीजों में, उन लोगों को उस हिसाब से एनवायरमेंट क्रिएट करना बहुत जरूरी है। जी, बहुत ही डेलिकेट इशू है, और देखते हैं आगे क्या इसके बारे में डेवलपमेंट्स होती हैं। अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। प्रमुख एशियाई बाजारों में आज गिरावट का रुख रहा। कोविड-19 और उच्च शेयर मूल्यांकन पर चिंताओं से बाजारों में मंदी आ गई। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1.2% के नुकसान में रहा, और जापान के निक्केई सूचकांक में 0.4% की गिरावट दर्ज हुई। हांगकांग का हैंगसेंग 0.3% के नुकसान में रहा, और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स में 0.2% की गिरावट दर्ज हुई। हालांकि चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.4% की बढ़त में रहा। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो यहां रुख मिला जुला था, और कारोबार का दायरा सीमित था। दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक लंदन का फुटसी 0.3% की गिरावट पर था। हालांकि फ्रांस के कैक और जर्मनी के डैक्स दोनों में 0.1% की वृद्धि थी। And moving on to the U.S. markets, the U.S. stocks rose yesterday amid strengthening of the dollar propelled by better than expected U.S. retail data. The Dow Jones Industrial Average added marginally by 0.2% and the S&P 500 gained 0.4% and the Nasdaq Composite Index climbed 0.8%. जयंत, क्या कहेंगे आप? डॉलर में जो हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं, डॉलर इंडेक्स 16 से 18 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। यूएस में बॉन्ड यील्ड्स 1.6% से ऊपर बनी हुई हैं, और एफपीआईज का जो प्रवाह है भारत में हम देख रहे हैं अक्टूबर ऑनवर्ड्स कम हो गया है। सो क्या जो इमर्जिंग मार्केट्स है और भारत के प्रति आकर्षण कम हो रहा है फॉरेन फ्लोज का? देखिए, मैं मानता हूं कि डॉलर का जो स्ट्रेंथ है वो बरकरार रहेंगे इस वक्त, और साथ में ये भी निर्णय होगा कि कहीं ना कहीं विदेशी बाजारों में खास करके सेंट्रल बैंक वगैरह का भी क्या रूप रहा है यूएस में, उसको ऊपर इस वक्त मैं मानता हूं कि रुपये का जो स्तर है डॉलर के साथ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आज का तारीख में हालांकि अप्रिशिएट हुआ है, बट एट दीज लेवल 74 का लेवल्स में भी काफी अच्छा है इस पर।
तो आपको लगता है कि जो यूएस फेड है वो जल्दी ही फैसला ले सकता है इंटरेस्ट रेट्स पे, क्योंकि अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि इंटरेस्ट रेट्स एक बहुत बड़ा ऐसा मेट्रिक है जो हमारी ये पूरी दुनिया इंतजार कर रहे हैं जी यूएस फेड का एक निर्णय, अगर निर्णय ना हो तो कम से कम दिशा बताएंगे ब्याज दरों के ऊपर। तो मैं भी साथ में यही उम्मीद कर रहा हूँ कि जितना जल्दी वो दिशा बताए, एटलीस्ट थोड़ा बहुत जो रोजगारी का जो अनिश्चितता है मार्केट में उसमें बेशक थोड़ा बहुत कमी हो सकता है। लेकिन देन रेगुलेटर्स बीइंग रेगुलेटर्स वो भी अपना ओन स्वीट टाइम लेके सही रूप सही समय के साथ साथ वो भी अपना अनाउंसमेंट करते हैं। लेकिन ये जरूर है कि इट विल बी सूनर देन लेटर अगर अनाउंसमेंट आता है तो। And moving on to oil now, the oil prices today fell after the International Energy Agency IEA and OPEC warned of impending oversupply, and as COVID-19 cases in Europe increased, the downside risks to demand recovery. However, a fall in the US gasoline stocks curbed losses, and in the intraday trade, Brent crude was trading around $82 per barrel, while the WTI crude prices were at $81.30 per barrel. क्या कहेंगे आप जयंत? तो आपको लगता है कि ये $82 to 84 का जो है अब न्यू नॉर्मल हो गया है ब्रेंट क्रूड का प्राइस, एंड शायद वो अब एक्सेप्टेबल हो गया है वर्ल्ड को, एंड कैन वी होप कि यहीं रहेगा टिका हुआ, क्योंकि पहले 100 तक पहुंचने की भी आशंका जताई जा रही थी? देखिए, अगर जो सवाल आपने कहे उसके बारे में अगर मैं सही रूप से जवाब दूं तो आई वुड हैव बीन द मोस्ट सॉट आफ्टर मैन इन द ग्लोबल ऑयल इंडस्ट्री। तो वजह इसलिए क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं, और आज से नहीं पिछले 10 साल से मैं यहाँ पे हमेशा ये बात कह रहा हूं कि ऑयल कार्टेल एक इतना अजीब कार्टेल है जहां पे किसी भी तरह का निर्णय के साथ साथ कंसिस्टेंसी आप बेशक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो पहला आपका जो सवाल का हिस्सा था कि वेदर $80 इज अ न्यू नॉर्म, मैं मानता हूं बिल्कुल नहीं। और दूसरा हिस्सा ये है कि अगर ब्याज दरों के ऊपर एक निर्णय आ जाता है और ओवर हीटिंग का कहीं ना कहीं ग्लोबली जो एक सिचुएशन है उसमें अगर एक नरमी आता है तो बेशक ऑयल का कीमत में भी नरमी बेशक आ सकता है। जी, तो ये भारत के लिए डेफिनेटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी। बिल्कुल। आइए अब देखते हैं कीमती धातुओं में कैसा प्रदर्शन रहा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी के अनुरूप मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर में आपूर्ति वाले सोने का मूल्य 130 रुपए बढ़कर 49,170 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। दिसंबर में आपूर्ति वाली चांदी भी 410 रुपए महंगी होकर 66,640 रुपए प्रति किलो पर थी। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना मजबूती के साथ $1,866.30 प्रति आउंस पर था। चांदी भी वृद्धि दर्ज करती हुई $25.20 प्रति आउंस पर थी। क्लासिकली जब इन्फ्लेशन का डर होता है तो सोने की कीमतें बढ़ जाती हैं, मांग बढ़ जाती है। क्या वही होता हुआ आप देख रहे हैं? बिल्कुल, बट फिर से मैं दोहराऊंगा कि अगर सोने का मेरे बारे में अगर आप पहले का कुछ पुराना जो सोने का ऊपर जो मैंने अलग से निर्णय किया था जहां पे सोने का गिरावट हो रहा था, तो उस वक्त मैंने ये भी कहा था कि कोविड का जब अंत लोगों को लगेगा नजदीक आ रहा है और जब ये लगेगा कि वैक्सीन के दौरान ये कोविड का जो लड़ाई है उसमें थोड़ा बहुत जीत हम उपलब्ध कर पा रहे हैं, तो उसमें सोने का भी अलग से कीमत अलग से चढ़ने लगेगा और वही स्थिति अब इस वक्त। जैन, तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। And before we close, a reminder of the headlines. Domestic stocks witness losses of more than 0.5%. Sensex closes near the 60,000 mark. Nifty finishes below the 17,900 level. And Asian equity indices decline amid worries about COVID-19 and higher share valuations. Well, that's it in this edition of Market Mantra. This is Nishit Kumar along with me, Sonu Sood, saying adios till we meet again the next time. Market Mantra.